जय हिंद आप सभी का। अभी आप सोच के देखिए यूनिफ़ॉर्म पाने तक की जो जर्नी होती है वो कितनी लंबी हो जाती है। रिटन निकालो, फिर एसबी निकालो, फिर अकेडमी जाओ, अकेडमी में रगड़ा खाओ और रगड़ा खाने के बाद फिर फाइनली जाकर पीओपी जहाँ पर तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होते हैं तुम्हें यूनिफ़ॉर्म में देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। अभी एक कमांडर हैं, कमांडर चक्कपाणी सर। आपने आई होप इनकी कई सारे इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पे देखे भी होंगे। अब कमांडर साहब से मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे। अब जब इनसे फोन पे बात हुई तो ही वाज जस्ट टेलिंग राइट नाउ in 21st century how the life has been changed for the defense aspirant and how it was for us in 70s। मैंने कहा सर अगर हो सके तो इस बारे में अगर बात हो जाए एक इंटरव्यू हो जाए इस चीज पे so how good it is। Now I invited him to tell his journey of NDA। He was an alumni of NDA, so ये जर्नी हमें समझनी है। So I like to invite you all to go to this journey with me। जय हिंद सर। Jay and Sovam, how nice to see you and talk to you once again. So I'll always love to talk to you because some new adventures always come while talking to you. So I love to talk to you. And right now you're the part of the Mission NDA, and I come to know you are also an ex-alumni of NDA. Absolutely correct. And with your team, you have presented the Mission NDA, which is exactly the replica of NDA. Well, to a very large extent, absolutely right. Okay. The objective is to prepare the kids to be able to join NDA, Hmm. prepare them well in advance, Okay. and also give them an idea what exactly is NDA all about. Okay, so precisely is it about the class 10th? So हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात में मतलब बाद में बात करेंगे मिशन एनडीए के। So sir, I like to know you the very first day of NDA after joining। The very first day, well, the जी। very first day I remember like it was yesterday. It was on a train. I landed up from a place called Dharwad in Karnataka, and we reached Pune at about 2:33 in the morning. Okay। And for a while, we had to wait on the platform itself. And much to my surprise, I find not just me, a number of other people already there waiting for me. From Hari Menon to Rajesh, you name it, those guys were there. And the moment they saw me drag out a huge box, which Okay। was exactly 100 centimeters into 55 centimeters into 25 centimeters in dimension, painted black, they knew I was one more guy who was going to NDA. Right there, our friendship started. My experience of day one started. Oh my God, you're taking me back the memory lane by a large amount. Thank you for that. That's sir, it's my pleasure। but वो शायद वो बॉक्स की डायमेंशन कॉल लेटर में आपको लिख के दी होगी कि भाई ऐसा बॉक्स लेकर आना। The exact dimensions were provided in the call-up letter or in Okay। the joining letter. Okay। And the objective here was this is the size of the box that would go into the just under the NDA bed. Okay। Anything taller, the box would not go in, and it had to fit exactly there. Okay। सब अब बात आती है उस फर्स्ट डे की, तो इट्स अ ड्रीम डे ऑफ योर्स। तो ये कहानी यहाँ तक की पहुंची कैसे? Well, पहुंची कैसे? Interesting question. Don't forget, वो दिन ऐसे थे जिसमें गूगल अंकल तो थे नहीं, ओके। ना ही गूगल आंटी थी, ओके। ना ही कोई किताबें थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, एक आध किताब थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। You only had libraries and physical human beings जिसको पहले से एक्सपीरियंस है, जो आपको बता सकते हैं। ओके। या फिर यूपीएससी का एडवर्टाइजमेंट था विच सेड आपके रिटन एग्जाम का सिलेबस फलाना 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 है। अच्छा। देन यू हैड अ राइट आउट ऑन दी कि भाई एसएसबी इंटरव्यू होगा, 5 दिन का इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए आपको फलानी फलानी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा। बट दैट्स अबाउट ऑल यू न्यू। अच्छा। आई वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। ओके। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि 60% ऑफ चीजें जो सिलेबस में थी हमने पढ़ी ही नहीं थी। And when you see the syllabus in 12th class or 11th class you saw? No, in 11th class, that's just before I had to appear for the first NDA exam. अच्छा। Because सिलेबस तो तब आता था, और
पुराना एडवर्टाइजमेंट एनडीए का कहाँ से मिलेगा? जी जी बहुत जी मुश्किल काम था। ओके ठीक है, तो किसी तरह से हमने ये जुगाड़ करके निकाल लिया सिलेबस देखा तो बुरा हाल हो गया। तो आई वेंट टू दी माय मैथ्स टीचर एंड फिजिक्स टीचर, मैंने कहा सर क्या करें, ये तो बिल्कुल सिलेबस में चौलवे ना हो रहा है मेरे लिए, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ कहता फिर चिंता मत कर, मैं हूं। अच्छा सो माय टीचर इन स्कूल said I will teach you maths. ओके But the principal of my college said, don't worry, I will get your maths going and physics going and chemistry going. I will appoint a professor from the college who will do this job for you. ओह These people, I remember their names as I remember as it was yesterday. ओके My teacher in school was Professor Kerur. He said, come home every Sunday at 10 in the morning. I would be with Professor Kerur, and Kerur sir would be teaching me from 10 o'clock to 2 o'clock. अच्छा रगड़ के रखते थे अरे पूरा वीक का एक साथ पूरे वीक का एक साथ। ओके ठीक है, एवरी डे, इनफैक्ट नॉट जस्ट पूरे वीक का, संडे वाज 4 hours क्लास, अच्छा Monday to Saturday 1 hour in the evening with Kerur sir, 1 hour in the evening with my math sir, 1 hour in the evening with my chemistry sir. मेरे स्कूल में, और I had to do my college studies in addition to everything else. They all stayed some distance apart from each other, so that I had no option but to take a bicycle on rent at 2 पैसे per hour. 2 पैसे पर आवर अच्छा ओके 2 पैसा per घंटा. अच्छा That was the rent of the ओके bicycle. ओके ठीक है. So I would take a bicycle at 2 पैसे per hour, cycle to the first to Kerur sir, from there to the next, and come back and return the cycle at 9 in the evening. Okay. And then get back to my studies, next day morning back to college. So this was how I prepared the academics part. Unknowingly, without any deliberate attempt from my side, because I had to cycle and I had a very limited time, and कभी-कभी cycle on rent नहीं मिलती थी, so I had to run. अच्छा हाँ, there was no option, cycle ही नहीं थी, क्या करें? how many kilometer you have to run sir कितना किलोमीटर भागना पड़ गया था So आपको well, all told, all these 3 places and back home was about 7 kilometers. अपने आप में फिजिकल फिटनेस ठीक हो गई। मैंने सर कुछ नहीं किया फिजिकल फिटनेस के लिए, अपने आप रनिंग भी होती थी, साइकिलिंग भी होती थी। तो प्रोफेसर साहब कहते नहीं थे बेटा कुछ ज्यादा थका थका लग रहा है क्या मेहनत करके आ रहा है नहीं, उनको ये थकान दिखाई नहीं देती थी, उनको सिर्फ मेरा इंटरेस्ट दिखाई देता था, और वो आके कहते थे, स्माइल करके बोलते थे, अच्छा आ गया, आजा बच्चे, होमवर्क किया? ओके फर्स्ट सवाल बस होमवर्क किया है, ये नहीं तुम कैसे हो, ये नहीं क्या हो, कुछ नहीं, होमवर्क किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो अपने हाथ सामने करें। ओके तो वो दिन भी आए जब हाथ सामने हुए हैं तो ये बात आपके वर्ड से पता लगी। हाथ सामने हुए का मतलब ये कि फुट्टे से पड़ेगा खड़ाक। ठीक है Those days capital punishment was the done thing and nobody objected. ओके सो आपका रगड़ा वहीं से स्टार्ट हो गया था वहीं से स्टार्ट हो गया था, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज करेक्ट। ओके बट हाउ ये सब ठीक है सर ये प्रिपरेशन इज ऑन गोइंग ठीक है उस टाइम का आपने माहौल बता दिया बट ये एनडीए का जोश मिला कहाँ से आपको हाँ, नो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। यू नो बहुत पहले व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है, दैट्स द टाइम इंडो पाक वॉर हैपेंड, ओके 1971 की, जी ठीक है, and I would see pictures of aeroplanes. Don't forget, this was all pictures of aeroplanes, meant pictures of aeroplanes in the newspapers ओके and the very few magazines that were there. ओके Okay, so pictures of aeroplanes, pictures of all this, and I used to get very excited. यार देखो कितना मजा आता है, ठीक है, I was a kid finally, 7th standard boy. जी मैं आगरा में था, and there used to be these air raid sirens, and हम सब है ना लाइट्स ऑफ करते थे, द विंडोज में पेस्टेड विद ब्लैक पेपर, कि एक रोशनी का एक आईना भी ना, टाइनी टुकड़ा भी ना रोशनी बाहर ना जाए, कि उसको मालूम ना पड़े कि कहाँ पे क्या है। ओके टुडे यू कांट इमेजिन दैट एयर रेड वार्निंग से क्या होता था, एंड यू वुड हियर द बॉम्ब्स फॉल एट टाइम्स। ओके,
So that was all. That is why I got initiated into the forge plus aeroplanes. Aeroplanes were my love. ओके, सो कहीं ना You, कहीं मैं गैस कर पा रहा हूँ, यू वांट टू बी अ पायलट. I wanted to be a pilot. मैं तो हमेशा कहता था इंडिया में भी पहुंचा तो जूलियट्स कॉर्न गया, and we called not Juliet's Corn but Jaguars. And Jaguars were the aircraft that had just come into India, and I thought I am going to fly Jaguars. But you entered into Indian Navy. Yeah, that's another story. We'll come to it. Okay. ठीक है. But वहां पे ये लव शुरू हुआ, वहां पे ये एक्साइटमेंट शुरू हुई, एंड देन आई गॉट इनटू, फिर मैं एनसीसी पहुंच गया. Luckily in my school in Dharwad, that is in Karnataka, we had air wing NCC. Okay. So I got into aero modeling. Those days I made an aero model which could fly, and you'd fly using wires. Okay. That's a big Okay, thing. so the model was tied to your hand with your wire, and you used your fingers to control the wings and the ailerons so that you could take off or land. That's really 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 adventures. और ये तो मतलब बहुत पैशन दिख रहा है आपका कि पायलट बनना ही बनना है. तब बनना ही बनना है. फिर Parents were not so rich that they could afford me to go to an institute जहाँ पे मुझे flying सिखाई जाएगी और मैं पैसे दे के कर पाऊँ. So what are the other option? Indian Air Force. Okay. So Indian Air Force, here I come. Indian Air Force join कब कैसे करना है? NDA. क्यों? क्योंकि भाई पढ़ाई अगर फ्लाई करना है तो पढ़ना क्या है? तो पढ़ाई से तलाक लिया जाए, जितनी जल्दी हो सके पढ़ाई से तलाक लिया जाए. अच्छा. जो भी मैंने ये सोचा था, बिलीव मी, पढ़ाई से तलाक आज तक नहीं हुआ है. यस सर, आप तो इंटेलिजेंट लड़के थे, आपको क्यों तलाक चाहिए पढ़ाई से? अरे पढ़ना नहीं था यार. इंटेलिजेंट लड़के को भी पढ़ना नहीं था? नहीं पढ़ना था, हमें बिना पढ़े पढ़ना अच्छे नंबर आ जाते थे. अच्छा. ठीक है. So when I joined NDA, I had an admission to BITS Pilani, I had an admission to IIT of my choice. My marks were such that I could join any college of any discipline in Karnataka, whether medical or engineering. Okay. और मैंने सबको छोड़ के NDA ज्वाइन किया. Great. We come to the big part of the story. ठीक है. So first day of NDA से मैंने सुना है बाल काटे जाते हैं. How long was your hair? बाल तो काटे जाते हैं. मेरे बाल तो लंबे नहीं थे. Okay. मेरे बाल तो जैसे अभी हैं वैसे ही थे, लेकिन गंजा नहीं था. Fair enough then. But yes, I had a friend of mine, Prem. Prem had come from Singapore. अच्छा. An Indian national living in Singapore. Okay. He couldn't speak Hindi. एक तो मलयाली, उसके ऊपर हिंदी नहीं आया उसको. ठीक है. वो हिंदी बोल भी नहीं पाता था. The word Hindi, you would call it Hindi. Okay. ठीक है. And he had hair which was still here. Okay. जुल्फे थी उसकी, चुटिया बन सकती थी उसकी, उनके बालों की. Okay. And हम पहुंचे इटालियन सलून में. अच्छा. इटालियन मीन्स ईंटों के ऊपर चेयर रखी हुई थी. That's Italian. Okay. ठीक है. तो हम पहुंचे इटालियन सलून. सामने शीशे रखे थे. एंड लाइन पे सब खड़े, लाइन के साथ एक एक करके अपने अपनी कुर्सी पे बैठे. एंड हेयर कट वॉज एन ऑपरेशन दैट टुक जस्ट 2 minutes 120 seconds. Okay. एक उस तरह एंड सारे बाल साफ. सर कोई ऐसा था जिसको बाल कटवाने के बाद पहचान भी नहीं पा रहे थे, बगल में बैठा था पर? कौन नहीं था? Oh God. ये हेयर कट के तुरंत बाद आई कैन बेट माँ भी नहीं पहचानती मुझको मेरी. अच्छा. और सब के सब एक से लगते थे. बाल कटे, मुस्टैच निकल गई, जिसकी भी मुस्टैच थी. अच्छा. ठीक है. तो सर ऊपर से ऐसा लगता था कि नया नवेला बच्चा निकला, वो पैदा होके सीधा बड़ा हो गया हो. That's great. That's great. Okay. प्रेम जैसे लोगों की आंखों में आंसू में चली गई. ओहो. Okay. Okay sir, I like to move to the next. अब तो मिलती है स्क्वाड्रन. करेक्ट. तो सर एक ना थोड़ा होता है, मतलब आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू लिया है तो उन लोगों को वहम था कि एनडीए में जाते हैं तो हम साहब बन गए, अब तो 2-4 नौकर वॉकर होंगे हमारे और हमसे बात करेंगे, प्रॉपर हमारी सीटिंग वीटिंग होगी, आराम की जिंदगी होगी अब तो दिस इज समथिंग इन योर माइंड, क्योंकि अब तो पायलट की ट्रेनिंग करनी है, बस इतना ही है बस. वेल ये हिस्सा मेरा सॉर्ट आउट हो गया था स्कूल कॉलेज में ही. अच्छा. क्योंकि इतना मुझे मालूम पड़ गया था
क्योंकि धारवाड़ में कर्नाटक कॉलेज में मैं पढ़ता था, हाँ पीयूसी कहलाता था 11th एंड 12th, अच्छा और वहां पे आते थे सैनिक स्कूल बीजापुर से बंदे, ओके जो वहां से 10th करके आए थे, अच्छा तो वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते थे। ओके उनके सीनियर्स होते थे जो एनडीए में थे, तो उन्होंने ये आइडिया हमारे सॉर्ट आउट कर दिए थे ये ऐसा कुछ कि नहीं भैया होता। अब एनडीए ज्वाइन कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी हम्म बात है, जी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दो। हम्म ठीक है, मेरी अपने आप हो गई थी, दैट्स इत्तेफाक की बात। इत्तेफाक की बात। ठीक है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, भागना भागना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे साला मैं तो साहब बन गया नहीं चलता। ठीक है, जिस दिन एनडीए ज्वाइन करोगे, यू आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ, तुम अमीबा से भी नीचे हो। धीरे धीरे एज यू कीप प्रूविंग योरसेल्फ, यू विल गेट प्रिविलेजेस। ओके ठीक है, सो एवरीथिंग वाज अ प्रिविलेज। ओके ठीक है So that's how we got into this of कि भैया टेबल मैनर्स भी सीख, वहाँ एनडीए पहुंच के टेबल मैनर्स भी सीखे। जिसने जिंदगी में कुर्सी टेबल पे नहीं खाया था, मैंने तो नहीं खाया था, टू बी अच्छा ऑनेस्ट। ओके मैं तो पीठे के ऊपर बैठ के मम्मी किचन में खाना बनाती थी, तवे से रोटी निकलती थी और प्लेट पे आती थी। ओके ओके सो मैंने टेबल मैनर्स के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनी है। ये चूरी खाटा के साथ खाना होता है, पहली बार खाना होता है, एंड करेक्ट। फ्रॉम रोटी टू चिकन एवरीथिंग विल बी ईटन विद द यूज ऑफ फोर्क एंड नाइफ। रोटी नहीं, बट चिकन, यस। अच्छा चिकन फॉर यस। तो मैंने चिकन की कहानी सुनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर आपके साथ कुछ हुई तो बताइए। मैंने सुना है कि एक सीनियर थे, मतलब बता रहे थे एनडी की कहानी। सो चिकन उन्हें हाथ से तोड़ के खाने की आदत थी। अब खाना मतलब काटे चम्मच से, वो जैसे ही खाए तो एक चम्मच उनके सीने की प्लेट पे जाके गिर गया उछल के, एंड दैट्स हाउ द इंसिडेंस हैपन। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है सर? एक बार हुआ था ओके कि वो चिकन एक्चुअली काफी टफ था। हाँ ठीक है, छुरी से हम कर रहे थे, काटने की कोशिश की थी, छुरी से वो कटा नहीं, हाँ लेकिन एज के ऊपर लगा तो चिकन वो जंप कर गया, किसी और पे नहीं गिरा लकीली, लेकिन छींटे जो है ग्रेवी की हाँ वो पड़ गई यूनिफॉर्म में हमारे सीनियर की। ओ उसके बाद से मुझे अगले 7 दिन आई हैड टू हैव चिकन डिप्ड इन सॉल्ट, कि भाई ये पनिशमेंट थी। अच्छा चिकन का पीस उठाया, सॉल्ट उसको में पहले नमक के बाउल में डालो, नमक के बाउल से निकालो तो इतना सॉल्ट उसमें हो जाएगा कि कुछ कहना नहीं है। अब अपने आप छोटे छोटे पीस खाएंगे आप। So it's beyond my imagination कि अगर बोन उसमें है तो कटेगा कैसे? How it is practically possible? Well, I can show it to you practically. चलिए अभी के लिए उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ देते हैं, बट मैंने सुना है कई बार ना लंच भी मिस हो जाते थे। लंच नहीं, ब्रेकफास्ट मिस होते थे। अच्छा लंच ब्रेकफास्ट एंड मिस डिनर होता नहीं था। होता था कभी। ओके, और ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मिस मिस हो होता जाते थे, और बच्चे जब वो मैराथन कुछ होती थी तो वो गिर जाते थे। गिरते ब्रेकफास्ट मिस होने से नहीं थे। तो देखो, गिरते तो हम 95% ऑफ द टाइम अपने आप गिरते थे, कभी कभी ये सोच के कि यार आज के हम जरा गोची मार ले। ठीक अच्छा है, लेकिन होता ये था कि देखो प्रैक्टिस रन्स में ये था, जो इंडिया क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर की है मोटा मोटी, प्रैक्टिस रन्स हमेशा 15 किलोमीटर के होते थे। ओके प्रैक्टिस रन जो होता था वो सिर्फ आपका स्क्वाड्रन चलाता था। हम्म वेरी ऑफन आपके सीनियर्स भी भागते हो, सीनियर्स तो भागते ही थे, हम्म लेकिन आपके डिविजनल ऑफिसर भी होते थे, या तो वो ओके भाग रहे होते थे या मोटरसाइकिल पे होते थे। ओके यहाँ पे आपने गोची मारी तो आप पकड़े जाते थे, अच्छा तो पकड़े गए तो भाई अगले दिन आप डबल भागेंगे, ओके सुबह भी भागेंगे, शाम को भी भागेंगे। ओके ठीक है, इतना सब प्रैक्टिस करने के बाद भी आई वाज नॉट वेरी गुड फिजिकली, ओके ऑनेस्ट, अच्छा आई वाज नॉट वेरी गुड फिजिकली अच्छा एनडीए के हिसाब से, माइंड यू। ओके ठीक है, दिस वाज वन द बिगेस्ट एक्सपीरियंस आई मस्ट से। देखो एनडीए जब ज्वाइन किया था मुझे लगता था कि मैं खुदा का व्हाटएवर हूँ। अच्छा मैं स्कूल में आई वाज हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी गुड इन एकेडमिक्स। ओके ठीक है, नॉट बैड इन गेम्स। हम्म ठीक है, जानकारी मुझे अच्छी थी, हम्म पैशनेट था, हम्म बोलता अच्छा था, जी डिबेट्स वगैरह में सब जीतता था, जी कॉलेज में भी वही चला। अच्छा फुटबॉल खेलता था, आई वाज कॉल्ड मैन विद आयरन लेग्स। ओहो ठीक है, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी ने किक भी मारी, मुझे लग भी गई तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं बॉल छीन के ले जाता था। अच्छा ठीक है, अपने आप को मैं तोप समझता था। अच्छा एनडीए पहुंचा तो मेरे से बड़े बड़े तोप वहां पे थे। ओके
It was a very, very humbling experience. Humbling Suddenly experience. आसमान से गिरे, खजूर के ऊपर अटक गए, वो भी लटके रहे वहीं पे, Oh my क्योंकि God. ना जमीन पे गिर पाए, ना हम कुछ कर पाए. Okay. Because I had to compete with people who are better than me or as good as me. ठीक है. So that became one challenge. If you Okay. will. ठीक है. तो अब जब शैमिंग की बात आई, जो मैंने कहा ना गिरने की बात, जो तुम बता रहे थे, हम्म. पहली बार भागा क्रॉस कंट्री, भाई 3 किलोमीटर रोज भागता था, या एवरी सो ऑफन करता था. जी. लेकिन जब 10 किलोमीटर भागने की बारी आई, तब तो भैया 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर. जी सर. ठीक है. तो भागा नहीं गया, तो अगले दिन पैर में दर्द हो रहा था. जी. हमने सोचा चलो ठीक है, आज शाम किया जाए. ठीक है. Okay. कैसे किया जाए, किसी से बात कर रहे थे जो सैनिक स्कूल से थे, RIMC थे, जी. से आते हैं, ये लोग जरा स्मार्ट होते हैं. अच्छा. हमसे तो डेफिनेटली स्मार्ट होते हैं. Okay. ठीक है. गिरने पड़ने नौटंकी करने में. हम्म. तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार ये कर लिया कर, जस्ट गिर जाओ. वो बोल दे टांग पकड़ के कि यार दर्द, सर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है. किसको मालूम दर्द कहाँ हो रहा है. वो भी गिर गया. Okay. ठीक है. इनिशियली तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग भाग के आगे निकल गए हैं. अच्छा. फिर आए पीछे से हमारे डिविजनल ऑफिसर, साइकिल पे थे. हाँ. देखा मुझे ऊपर से, ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर से यमदूत नीचे मुझे देख के कह रहा है, अच्छा बच्चे तुम गिर गए हो, हाँ. खड़े होके दिखाओ. अब ऑफिसर के सामने हमको लगा यार अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहिए, हाँ. कितने अच्छे हैं वो दिखाना चाहिए. खड़ाक से खड़े हो गए. हाँ. ठीक है. नौटंकी भूल गए, क्योंकि हम ट्रेंड नहीं थे ना इस मामले में. ओके. ठीक है. तो अपने आप सीधे खड़े हो गए, अपने आप सीधे हो गए. तो उसने कहा अच्छा बच्चे तुम गिरे क्यों थे, ये बता दो. अच्छा. तो मैंने कहा सर वो पैर में दर्द था, ये था. अब कहाँ है दर्द, कि सर आपको देख के चला गया. Okay. चला गया ना, अब शुरू हो जाओ भागना. Okay, that's your instances. Okay. Okay, सर मैंने एक बात सुनी है, मुझे डिवीजन क्या सर? उसके बाद ये स्टंट मैंने नहीं किया. कहीं नहीं किया, पर सर मैंने एक बात सुनी है, सीओ साहब स्क्वाड्रन में आ जाएं तो खतरे की घंटी है, कुछ बात हो गई. सीओ साहब, हाँ स्क्वाड्रन कमांडर, तो स्क्वाड्रन कमांडर आते थे, रोज आते थे या हर दूसरे तीसरे दिन आते थे, टहल के चले जाते थे. अच्छा. लेकिन उनके आने से पहले घंटियां बज जाती थी, सबको मालूम पड़ता था, क्योंकि उनके पास थी बुलेट. अच्छा. जैसी बुलेट की आवाज आई, सब के सब तत्पर, बिल्कुल अपने अपने कमरों में बैठे हुए, बिल्कुल सही सलामत पढ़ाई कर रहे हैं. जिसको नींद आ रही है उसकी नींद गायब. तो ऐसा होता क्या था सीओ साहब के आने पे, अगर सीओ साहब ने कुछ पकड़ लिया तो होगा क्या, डांट देंगे तो? पनिशमेंट. पनिशमेंट वाज मोर ऑफ रनिंग, मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ओके. ठीक है. आपने कोई चीज ठीक नहीं की तो रिस्ट्रिक्शन या एक्स्ट्रा ड्यूटीज, एक्स्ट्रा ड्रिल. अच्छा. ठीक है. अब हमारे जैसे लोग, कम से कम मैं जो था, वॉज नॉटी प्लस वॉट एवर एल्स, तो कहीं ना कहीं फंसता रहता था, तो हम हमेशा पनिशमेंट में रहता था. ओके. उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ. 6 weeks I was physically so good that nobody could touch me after that. फिजिकल फिटनेस में वो पीटी टेस्ट जो होते थे वो क्लियर, ड्रिल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो करता गया मैं अपने आप, बिना किसी तकलीफ के. लेकिन इनिशियली रगड़ा खूब खाया. इनिशियली रगड़ा बहुत खाया. सो डिड स्टार्टिंग के मोमेंट्स ऐसा लगा कि भैया गलत फंस गए, ये तो हमने दुनिया जो सोची थी, यहाँ से वापस जाने का मौका मिलता है 7-10 दिन में, वो ले लेते हैं, लगा सर आपको? बहुत बार लगा यार. सच बोलूंगा, कई बार लगा कि यार मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ. अच्छा. लेकिन देयर वर अदर फ्रेंड्स वर इन सिमिलर बोट. ओके. ठीक है. हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे. मोस्ट ऑफ अस केम फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड. जो हमारे ये थे फ्रॉम सैनिक स्कूल या RIMC. ठीक है. दे वुड देन मोटिवेट अस. अच्छा. और हमको कहते थे कि यार चिंता मत कर, दिस टू शैल पास. ठीक है. वो कहते, और सीनियर्स भी होते थे जो कभी कभी दया दृष्टि हमारे ऊपर डाल देते थे और कहते थे बेटा थिंक ऑफ योरसेल्फ, कितने लाखों में तुम हो एक जो NDA तक घुस पाए हो. ठीक है. लाइफ इज गुड, डोंट वरी, दिस विल पास. But what about your dream of becoming pilot?
वो तो अभी कहाँ चल रहा है सर? आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, ये हो रहा है। अभी पायलट का ड्रीम का क्या हुआ? नहीं, पायलट का ड्रीम बरकरार रहा ना, फिर तभी तो वो मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा। यार तू पायलट बनेगा, तेरा तो पायलट बनने का ड्रीम था, हाँ। अब क्या हुआ? हम्म। नहीं सर, पायलट का ड्रीम है। हाँ। कहता, "क्यों?" यार थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ा सा फिजिकल ये है, हो जाएगा। ओके। देख हमने भी ये किया है, हम भी एनसीसी में, हम भी थे सैनिक स्कूल में, 5th स्टैंडर्ड में गए, 6th स्टैंडर्ड में हम्म। गए, हम्म। हम भी रगड़े खाए हैं, हम्म। हम भी वही कर रहे हैं। ओके। ठीक है, कई बार मेरी वजह से लोगों को पनिशमेंट मिलती थी, बिकॉज पनिशमेंट पूरे स्क्वाड को मिलेगी, अच्छा। गलती चाहे एक आदमी करे। ओके। मोर ऑफन देन नॉट पंगा मैं लेता था, गड़बड़ मैं करता था, पनिशमेंट पूरे स्क्वाड को मिलती थी। ठीक है, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि यार तेरी वजह से मैं इतना भागा। क्यों? ये तो कहना चाहिए ना, नॉर्मल तो बच्चे कहते थे। हाँ नॉर्मल कहते कहते यार कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, टैक्स होता है, होता है, ओके। कोई गल नहीं, नेक्स्ट टाइम तू मेरी वजह से भागेगा। अच्छा। ठीक है, तो दैट इज हाउ मोटिवेशन हैपेंस। ओके, दैट्स मोटिवेशन हैपन। आपने भी जस्ट बोला चेक्स। ये हाँ चेक्स नाम की कहानी क्या है? हाउ डू यू गेट द नेम चेक्स फ्रॉम कमांडर चेक्स पॉइंट टू चेक्स? यार, एनडीए पहुंचे सुदर्शन चक्रपाणी, अच्छा। नेम टैली लगती है, नेम टैली के ऊपर 13 लेटर आ सकते हैं बस। ओके। तो उन्होंने बोले अब सुदर्शन चक्रपाणी में 13 लेटर से ज्यादा है, अच्छा। तो यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 13 और लेस। ओके। तो चॉइसेस क्या थी? एस चक्रपाणी, चक्रपाणी सी, सुदर्शन सी, हम्म। एस सी पानी, यही हो सकता था। हम्म। उन दिनों शोले मूवी निकली थी, अच्छा। उसमें टॉस था। ओके। भाई हर चीज में अमिताभ बच्चन सिक्का उड़ाता था हाँ टॉस जी, हाँ कराने जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी। हमने भी टॉस किया, हाँ। टॉस में एस चक्रपाणी आया, अच्छा। तो नेम टैली पे एस चक्रपाणी हो गया, तो चक्रपाणी इज द ओनली नेम दैट दे कुड सी, एस को ओके। किसको मालूम। जी, जी। ठीक है, तो चक्रपाणी से, यार बहुत लंबा नाम है, चक्कर पानी कौन बोलेगा, तो कुछ लोग मुझे चक्कर कहते थे, हम्म। कुछ लोग मुझे चैक्स कहते थे। चैक्स वो कहते थे जो अंग्रेज थे, अच्छा। बॉम्बे दिल्ली ऐसी जगहों से आए, तो अच्छा। अंदरों वो इंग्लिश में बोलते थे, हम्म। तो वो मुझे चैक्स कहते थे। जो ओके। बाकी देहाती थे मेरी तरह, वो हाँ। चक्कर कहते थे। ओके। somehow between the two of them चैक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो चैक्स कंटिन्यू। तो चेक्स गॉस कंटिन्यू। बट सर एक बात बताइए, हम लोग ना एसएसबी के बारे में बड़ा सुनते हैं, तो यू टोल्ड अबाउट द रिटन पार्ट, एसएसबी क्या, और जो 15 ओएलक्यू हम सुनते हैं उनका कुछ काम भी है? 100%। देखो, इट्स वेरी इजी टू से कि यार ये इंटरव्यू में आप एसएसबी में आपने 15 ओएलक्यू देखे, उसका क्या हुआ? हाँ। डोंट फॉरगेट दिस वन ओएलक्यू कॉल्ड डिटर्मिनेशन। जी। इतना सब पनिशमेंट मिलता है, इतना सब बुरी हालत होती है, फिर भी आर यू डिटर्मिन्ड एनफ टू कंटिन्यू? ओके। नाउ यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। I can't get, nobody can produce a situation जिसमें real war, real fighting आएगी. So how can you duplicate the stress that you can feel in war? Physical trouble, physical problems. भगाओ, टेंशन दो, टाइम मत दो, सोने का मौका मत दो, right? And still see whether he is able to do things or not. ओके। Determination. ठीक है, डिटर्मिनेशन है तो स्टेमिना अपने आप बन जाएगा। ओके। कम्स करेज। भैया, जो अगर तुमको लाइफ को फेस करने की करेज नहीं है, ठीक है, फिजिकल करेज आप नहीं दिखा सकते, तो मेंटल करेज आप कहां से दिखाओगे? ओके। ठीक है, दैट इज व्हाई यू हैव वेरियस ऑब्स्टेकल्स जो एसएसबी में होते हैं, जो फिजिकल करेज आपकी टेस्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, that physical courage continues being tested every time wherever you are, because if you can put yourself into physical danger, जब जी। अपनी कोमल काया को तुम तकलीफ दे सकते हो, तब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, तो अब उनका एक्सट्रीम वर्जन चल रहा है सभी ओएलक्यूज का। एब्सोल्युटली। अब आपने ये सब अगर करना है, फिजिकल, आपके सामने एक फिजिकल डेंजर है, आपने इसको क्रॉस कैसे करना है, आपने इसको फेस कैसे करना है, अगर आपने दिमाग नहीं होगा तो आप कर पाओगे? ये बात तो है भाई, बैल बुद्धि तो चलती नहीं है जी। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ओके। comes your effective intelligence, comes your reasoning, comes your organizing.
आपने किसी और को बोलना है, समझाना है कि भैया इसको इस तरह से किया जा सकता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। ग्रेट। मैंने एक जो एसएसबी में हमने बात सुनी होती है ना, ये 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमसे जीटो साहब कहते हैं यू आर हियर डूइंग 10 ऑब्स्टिकल्स, व्हेन यू जॉइन एकेडमी विल डू हंड्रेड्स। ये क्या कहानी है, इतना होता है क्या? देखो, देर आर वेरियस वर्जन्स ऑफ द सेम ऑब्स्टिकल्स, ओके। दे विल कम इन रियल लाइफ। यू विल बी डूइंग क्रॉस कंट्री, दोस क्रॉस कंट्री रूट्स आर नॉट बिफोर से, जो पहले जो आप बाद में क्रॉस कंट्रीज होती हैं, जी। नॉट द ऑफिशियल क्रॉस कंट्री रन जो कंपटीशन का हिस्सा है। लेकिन देर आर कैंप्स जिसमें आप वेरियस रूट्स पे जाते हो, वेरियस जगह पे जाते हो। वहाँ किसने पहले से रूट मार्क आउट करके बोला आपको इस रास्ते से चलना है? यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। दोस आर रियल लाइफ ऑब्स्टिकल्स जिसको आपने क्रॉस करना है। ठीक ठीक है सर, पर हम दोबारा कहानी पे आते हैं। कहानी थी आपके पायलट ज्वाइन करने की एंड योर डेस्टिन टू ज्वाइन इंडियन नेवी। ये क्या था कहानी, उस कहानी में आगे क्या है सर? कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या है? एनडीए से जब मैं पास आउट हुआ हाँ। विद 59th कोर्स इन दिसंबर 1980, जी। मैं एयरफोर्स कैडेट था और मैं पहुंचा एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल विच इज एट बीदर। ओके। बीदर पहुंचा, वहां पे फ्लाइंग शुरू की। हम्म। Those days there was an aircraft called HT2, Hindustan Trainer 2, small aircraft. It had its own pluses and minuses, but one interesting thing was its takeoff speed was less than that of a car. अच्छा। You would be flying in the air and you would find नीचे से कार आपको overtake कर रही है। Okay. It is a nice aircraft. Okay. Okay, but don't forget the Indian सरकार, हिंदुस्तान की सरकार is not a very rich सरकार. Any monkey can be taught how to fly. Okay. Provided you give him time. Okay. But in the Indian Air Force, because of whatever we have as our restrictions or limitations, you have 18 hours to learn to fly. Okay. And you have to clear your solo check by the time you finish 18 hours of flying. Okay. अगर आप सोलो चेक इस टाइम तक नहीं कर सकते हैं, then you are recommended for being suspended from flying. Okay. And you can join anything else that you like. Okay. This is for India guys only, mind you. Okay. At that time. Okay. So at the 16th hour of flying, I thought I was doing great guns. Everything was going fine. And my instructor was saying, Chax, you're very good. Well done. तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मेरा सोलो चेक हुआ, हाँ, in solo check I failed. Okay. ठीक है, I failed. There are no two ways about it. I don't want to give excuses. Okay. Plenty of excuses. Excuse चाहो तो मैं कितने चाहिए उतने बता सकता हूँ. Net result is I failed because I was not good enough. Okay. ठीक है. So I got grounded or suspended from flying. Okay. So I had an option here of either continuing with the Air Force, लेकिन as a navigator or ground duties, or transship myself to another service. Okay. Which was Army or Navy. ठीक है. I chose to shift out of Air Force and join the Navy. Okay. You joined the So Navy. then I took a voluntary this change of service from Air Force to Indian Navy. I ended up losing 1 year in terms of seniority. Okay. But then I joined the 61st course as per NDA is concerned in the Indian Navy. But I still think I did a wise thing by going into the Navy. By going to the Navy, sir. That's I know you are a very decorative officer. Sir, वो जो आपने बताया था that the first summer like an Aviva, वो क्या कहानी, मतलब कब क्या प्रोसेस मिलने वाला है आपको सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म में? चलो फर्स्ट टर्म में जब पहुंचते हो, let me give an analogy. जी। नेवी में हम कहते हैं कि जो जूनियर मोस्ट सेलर होता है, हाँ। जब जहाज अलॉन्ग साइड आता है, शोर पे आता है, तो पहला काम करता है कुत्ते को एक लात मारता है। हाँ। क्यों? सर एक कुत्ता ही है जो उसकी लात खा सकता है। तब तक तो वही लात खा रहा था। ओके। ठीक है, तो वही स्टेट है अमीबा की। अच्छा। अमीबा किसी को कुछ कर नहीं सकता। ओके। ठीक है, वो पिटता रहता है, धक्का खाता रहता है, सब कुछ करता रहता है फर्स्ट टर्म में। अब जैसी सेकेंड टर्म में आया, अब वो बढ़ गया दादा जी, क्योंकि उसके नीचे अमीबा आ गए ना, नए फर्स्ट टर्मर्स आ गए। ठीक है, अब वो इंडिया के बारे में जानता है जी,
उसकी फिजिकल फिटनेस इज ऑलरेडी रीच्ड द लेवल दैट इट शुड। जी जी ठीक है, उसकी जानकारी बढ़ गई, जी उसको मालूम है कौन सी चीज कहाँ है, जी कब क्या कैसे करना है। हम्म ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि अपने जूनियर्स को समझाए सिखाए। हम्म ठीक है, सो ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज जूनियर्स। ओके तो अब वो अमीबा से बढ़ गया, ओके क्योंकि उसके नीचे अमीबा आ गया। हम्म जो सेकंड टर्मर जब वो थर्ड टर्मर बनता है, उसके बाद दो दो कोर्स नीचे हैं उसके। जी जी एक अमीबा भी आ गया, एक प्रोटोजोआ आ गया, जी जो नए जो जरा सा बड़ा है अमीबा से। जी जब तक वो सिक्स टर्म में पहुंचता है, सिक्स टर्मर्स आर गॉड्स, अपनी मर्जी के मालिक, गॉड्स गॉड्स। चलिए इन गॉड्स पे मैं आऊंगा पर मुझे एक बात बताइए लाइक आई लाइक टॉक अबाउट द मिशन एनडीए स्टार्टिंग में आपने कहा था इट्स सिमिलर और रेप्लिका लाइक एनडीए ऐसा क्या है वहां करेक्ट, पर 10th क्लास का बच्चा आपके पास आ रहा है उसके बाद ऐसा क्या हो रहा राइट। है देखो 11वीं और 12वीं वो पढ़ता है एज अ नॉर्मल, कहीं से भी पढ़ रहा होगा, यू विल बी डूइंग द सेम 11th एंड 12th। हाँ जी इन एडिशन ही स्टार्ट्स डूइंग फिजिकल स्टफ, ओके पीटी, गेम्स। ओके ठीक है, एडवेंचर एक्टिविटीज, हम्म राइट। he is made into squadrons or groups, so he knows अगर पनिशमेंट मिलेगी तो पूरे ग्रुप को मिलेगी, अच्छा अकेले नहीं मिलेगी। तो बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, राइट। लेट्स फेस इट, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग वन इज स्कैर्ड ऑफ? फिजिकल डेंजर। ओके भाई मुझे चोट लगेगी, हम्म मैंने जंप किया तो मेरी टांग टूट सकती है, हाँ इसलिए मैं जंप नहीं करूंगा। हाँ अगर आपने अपना फिजिकल फियर जो है वो कॉन्कर कर लिया, जी ठीक है, तो आपका एटीट्यूड ये हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ओके ठीक है, योर करेज गोज अप। ठीक इफ योर फिजिकल करेज इज गुड, राइट, योर मॉरल करेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स इंप्रूविंग, बिकॉज नाउ यू आर टॉट, यू रियलाइज, जैसे एनडीए में हो या मिशन एनडीए में हो, यू रियलाइज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। द राइट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट देन द रॉन्ग। दैट इज व्हाई एनडीए प्रेयर में यह है कि मेक हेल्प अस टू चूज द डिफिकल्ट राइट वर्सेस द इजियर रॉन्ग। ओके ओके ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द एनडीए प्रेयर। बट बट हाँ चलिए आप अपना बात start करिए learning this part. हम्म That is what makes it Mission India special. ओके बट सर मेरे दिमाग में कई सारी बातें आ रही हैं अब एडवेंचर एक्टिविटीज गेम्स पीटी ये सब माँ बाप कहते हैं 11th 12th में पढ़ो सिर्फ Correct. पढ़ो Correct. ऊपर से आपका मिलिट्री डिसिप्लिन मिशन एनडीए में आ रहा है Correct. मेरे और अमेजिंग बात ये है कि मिशन एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ठीक है Right. तो ये पॉसिबल हो कैसे रहा है या तो पेरेंट्स गलत हैं या मिशन एनडीए में जो सिखा रहे हैं गेम्स पीटी वही पूछे जा रहे हैं एनडीए में Okay, I'll put it like this. ओके एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, all work and no play makes Jack a dull boy. जी बिल्कुल आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, जी आपने फिजिकल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है, तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ? नहीं मतलब पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल नहीं है। हाँ Therefore, there are some areas of development that are lacking when you are only focusing on studies or academics. ओके राइट। आपने बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली करनी होती है। जी आज की तारीख में मैं खुद जानता हूं मैकेनिकल इंजीनियर्स जिसको अगर मैं स्क्रू ड्राइवर दूं और बोलूं कि यार ये इसको खोल दे, he doesn't know how to handle the screwdriver to open the damn thing. ट्रू आई एग्री आई एम ठीक है, आई नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स who can't change the who can't tell me कि स्विच इज ब्लोन और स्विच को बदला और ये फ्यूज गया है कि फ्यूज को कैसे रिप्लेस किया जाए। जी तो उसने क्या किया इंजीनियरिंग करके? जी Right. All-round development is what is required as far as India is concerned, जी as far as life is concerned. अभी आपको ने बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा होगा मिशन एनडीए यू नो इट इज ट्रेनिंग यू फॉर ऑल ओवर द डेवलपमेंट जो एनडीए के लिए चाहिए होता है जिस वजह से बच्चों का नहीं हो पाता क्योंकि 11th 12th से पढ़ाई में जाती है बट मैं आपको बता दूं मिशन एनडीए जो आप नीचे देख रहे हो उसमें हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता इट्स नॉट पॉसिबल लेट मी शो यू अभी ये जो है ये एक्चुअली मिशन एनडीए की वेबसाइट है ठीक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी बात ध्यान से सुनो जरा जब आप यहाँ पर नीचे आओगे ना तो आपको इनका प्रोसीजर पता लगेगा सिलेक्शन का कैसे है सबसे पहले ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा किससे होगा ये भी बता देता हूँ क्यों डिफिकल्ट है यहाँ पर हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर कमांडर एंड डॉक्टर कमांडर इनके नटराजन सर है जो खुद एनडीए के एलुमनाई रह चुके हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कमांडर रैंक का इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक। इसके बाद जब ये होके चुकेगा तब फाइनली आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और इसमें इतने बच्चे छाड़ देते हैं कि पूछो मत। अच्छा, क्यों इतना प्रोसेस इतना टफ कर रखा है इन्होंने? वाई? यहाँ पर देखो, क्लास 11-12 की तैयारी तो होगी, एनडी की तैयारी भी होगी, और जेई की भी तैयारी होगी। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और जरा यहाँ पर इनके प्लान में देखो, एनडीए ट्रेनिंग जो इनकी पूरा सिलेबस है जो भी है, एंड फाइनली जून 2023 एनडीए ज्वाइन। सो इस बात की श्योरिटी दिलाते हैं, बैकअप प्लान तैयार भी कराते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी ले लें, क्योंकि यार एनडीए का सपना हर किसी ने देखा है, बट यार बात बताओ कौन पाएगा उससे, जो एकदम हार्ड वर्किंग हो, डिटरमाइंड हो? वो हर कोई नहीं होता है, तो हर किसी को कैसे ले लें? द मैन हु इज रेडी, मतलब हो सकता है माँ बाप पे पैसे हो, सब हो, बट यार हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन को कैसे बाय कर सकते हैं? तो दे विल ऑब्वियसली टेक अ गाय हु इज हार्ड वर्किंग एंड डिटरमाइंड, तभी उसको मिशन एनडीए में एडमिशन मिल सकता है, तभी उस पे एनर्जी, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, वरना तो बेकार है यार, समझ लो। इसलिए मिशन एनडी में हर कोई एडमिशन ले लेगा, नहीं होगा। और एक बात और बताता हूं मैं, ध्यान से देखना, साइट पे लेके जा रहा हूं मैं। अब देखो मैं वापस मिशन एनडी की साइट पे आ गया। अब जरा इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, यहाँ पर ना नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर बॉटम में आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, प्रोड्यूसिंग वन ऑफिसर एवरी 3.5 डे। बहुत बड़ी बात होती है। सो रिजल्ट तो बहुत हाई रहते हैं, पर याद रखो यहाँ पर घुसने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। अभी इनका रिटन एग्जाम आ रहा है 30 मई को, एनडीए का। अगर मिशन एनडीए तुम्हें ज्वाइन करना है तो याद रखो बहुत मेहनत के साथ देना। अगर यहाँ पर हो गया तुम्हारा, एनडीए का सपना तुम्हारे सामने खड़ा हो, ठीक है, क्योंकि वहां रगड़ा बहुत ही ज्यादा है। पूरा एनडीए जैसा रगड़ा है, एनडीए जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके तुम्हारे सामने रख देंगे वो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एनडीए की कहानी सुनते हैं, क्या बता रहे हैं कमांडर चकवाए सर। चलिए अब एनडीए की बात करते हैं वापस, लेट्स गो टू द एनडीए। पढ़ते कब थे आप लोग? मतलब आई एम श्योर मैम ने वीडियोस में देखा है बच्चे सो रहे होते हैं एनडीए की डेस्क पे क्लासरूम में। सो इट हैपेंस टू यू? Well, देखो, सोना is one part of the thing. I Okay. don't do that. ठीक है, बंदा थकता है कहीं कहीं ना कभी तो सो जाता है। हाँ ठीक है। So every day you have a study period. Okay. Okay, the study period is of 2 hours. Okay. Study period में आप पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं, you have your door open, you have a window open. Okay. Lights on, and you're sitting at the desk. Okay. At your table and studying. जी। There are from seniors to officers, divisional officers, squad commander भी, कभी-कभी battalion commander भी. I have known of deputy commandants and commandants going on rounds, and वो देखते हैं कि भाई आप actually पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई सोता पकड़ा जाता है, then obviously he gets punished. Okay. ठीक है। So you ensure कि भैया पढ़ाई के टाइम पे पढ़ लो, ठीक है। And don't forget, you can, if you fail in academics, you get relegated. निकाल देंगे? नहीं, relegate हो जाते हो, मतलब 6 महीना लूज करोगे। अच्छा 6 महीना लूज करते हैं, ओके। ठीक है। So nobody wants to be relegated, nobody wants to join that course जिसको उसने पहले थप्पड़ मार रखे हो। सही बात है, बिल्कुल ट्रू है सर। Nobody wants to go back to a lower course. तो भैया वो कहता नहीं यार, CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरा होना चाहिए। ओके। Which means academics भी पूरे करने चाहिए, गेम्स भी पूरे करने चाहिए, फिजिकल फिटनेस और फिजिकल टेस्ट जो होते हैं, पीटी टेस्ट, वो भी होने चाहिए। ओके ओके, तो ये यहाँ तक की कहानी हुई। तो मैंने एक्चुअली ये सवाल आपसे पूछा इसलिए, मैंने द मिलिट्री डिसिप्लिन इज टू टफ, ठीक है, तब वहां पर काम करना, पढ़ाई करना मुश्किल होता होगा, एंड स्टूडेंट्स स्लीप ऑन द डेस्क इन द क्लासरूम, ठीक है। तो आफ्टर में जब मिशन एनडीए हो रहा है, मिलिट्री डिसिप्लिन चल रहा है, तो बच्चों के लिए तो वहां वो तैयारी करने आए थे एनडीए रिटन की, तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा? तो भाई that is where he learns how to balance, how to manage time. ओके। But life is a set of balances. जी जी जी। ठीक है, पढ़ाई के साथ आपने गेम्स बैलेंस करने। हाँ ठीक है, आप एनडीए के पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपना 12th भी तो करना है। ट्रू। वहाँ भी तो 75% से ज्यादा लाना चाहिए। ओनली देन मेनी अदर एग्जाम्स में आप क्वालिफाई करोगे। जी जी जी। ठीक है, दैट्स अ बैलेंस। फिर से बैलेंस हो गया। ठीक है, इफ यू कैन मैनेज एंड लर्न हाउ टू बैलेंस टाइम, haven't you learned a skill which will last you a lifetime? That's true, sir. So mission NDA is not preparing you only for NDA. My view, मेरा personal view है ये, that it prepares you for life in general.
भाई आपको तैयार करता है कि आपने जिंदगी कैसे जीनी है. हम्म. It is giving you all the life skills, not only the academic skills. ओके. अच्छा सर, यहाँ तक की कहानी हो गई. चलिए इंडिया में वापस चलते हैं. वो 10 मीटर जंप की कहानी क्या है सर? वो 10 मीटर जंप मतलब कैसे होती है? मतलब हमने सुना है बच्चे करने से डरते हैं उसे. एनडीए में इस 10 मीटर जंप की बहुत अहमियत है. अगर तुम ये ना करो तो तुम अपना टर्म नहीं क्लियर कर सकते. बहुत लोग डरते हैं यार, मुझे भी डर लगता था. अच्छा. ठीक है, ये देन अगेन दिस इज अ बैलेंस. ओके. कौन सा डर ज्यादा है, अच्छा. पानी में गिरने का, हम्म. कूदने का, या फिर सीनियर से पिटने का? अच्छा. ओके. सीनियर से पिटने का डर बहुत ज्यादा होता था. ओके. सो यू जंप्ड. ओके. ठीक है, इनिशियली तो आपने पहले जब जब मुझे याद है, हाँ. देखो टेस्ट वाज 7 मीटर्स, हाँ. लेकिन आप 10 मीटर से करते हैं. हाँ. अगर 10 से कर सकते तो 7 तो बहुत आसान है यार. अच्छा. 7 में क्या प्रॉब्लम है? 7 10 कर लिया तुमने. सही बात है. ठीक है. नाउ 10 मीटर से जब आप जंप कर रहे हैं या 7 से जंप कर रहे हैं, आपको जैसे एज यू आर फ्लाइंग डाउन द एयर, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, हाँ. आपको अपना नाम, अपना पहले तो अपना स्क्वाड्रन, अपना नंबर एंड अपना नाम हाँ. बताना होता था. ओके. जैसे आई वुड हैव टू से 12990 जूलियट 59 हाँ. कैरेट एस चक्रपाणी श्रीमान. ओके. पूरा नहीं बोल पाता था ऑब्वियसली, तो पानी में पहुंच चुका होता था. हम्म. बट इट इज शोइंग हाउ मच ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड आई हैव टू कीप. राइट, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने बोलना है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को सीधा रखना है, हम्म. ना आगे झुके ना पीछे जाए, ओके. ना हाथ ऐसे खोले ना टांगे खोले. कि जो भी खुलेगा वहां पे पानी का थप्पड़ पड़ेगा. ठीक है. तो पहली बार तो मैंने जब किया था तो मैंने यही किया था, बजरंग बली की जय, और फिर जंप कूद गया. पहली बार इसका मतलब बहुत बार किया आपने? हाँ ऑब्वियसली. भाई एक बार में थोड़ी आप ये हो जाते हो. तो पहली बार जंप किया, ठीक से जंप नहीं हुआ, आगे पीछे हो गया, नाम नंबर ठीक से नहीं बोला, बोला भैया फिर से जाओ ऊपर. अब दूसरी बार गए तब तक डर थोड़ा कम हो गया. अच्छा. तीसरी बार गए डर और कम हो गया. ओके. ठीक है. उसके बाद तो बोला यार ये तो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है. मतलब मालूम नहीं पड़ता. 6-8 माले की बिल्डिंग से रोज कूदते थे? रोज तो नहीं, लेकिन हाँ जब भाई एक बार 7 मीटर जंप क्लियर करना है, उसके बाद आपने वापस 7 मीटर पे नहीं जाना. अच्छा. ठीक है. वो सेकंड टर्म में करना होता था. हम्म. जितना आप डिले करेंगे उतना आप ज्यादा कूदेंगे. ओहो. अकलमंदी क्या है? पहले कूद लो. क्लियर कर लो. भाई तभी तो कहते हैं ना, हर चीज के लिए देयर इज अ रीजन. आपने वो 15 OLQs की बात की, एवरीवेयर यू कम बैक टू द 15 OLQs. ओहो. ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. ग्रेट लाइफ. मजा आ रहा सर. अपने आप में अलग दुनिया है इंडिया. बट आई हैव सीन, मतलब ये कहा जाता है ना, इफ यू वांट टू सी द डिसिप्लिन ऑफ द मिलिट्री, सी द पीटी. पर पीटी की कहानी अलग अलग होती है. लेफ्ट की जगह लोग राइट मुड़ जाते हैं, राइट बोला है तो लेफ्ट मुड़ जाता है, दाएं उनको पता नहीं होता, दाएं बाएं बच्चों को. ठीक है. आजकल तो ज्यादा बच्चों को होता है, आई डोंट नो तब होता था कि नहीं होता था. ठीक है. और एकदम से टर्न करने को बोला, टर्न नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है. सो व्हाट वाज द सीन ओवर देयर? होते थे क्या सीन होते थे वहां पे पीटी के टाइम में? भाई अक्सर होता था, जिसको गलती करते थे, जो गलती अच्छा. करते थे वो पिटते थे तो सीख जाते थे. अच्छा. ठीक है. एंड जो जितनी जल्दी आप सीखोगे उतना कम पिटोगे. सर मैं सुना है पीटी में जो सबसे खराब होता है सबसे पीछे होता है वो. कभी कभी पीछे होता है, मोर ऑफन देन नॉट आगे होता है. जो सबसे खराब है सबसे आगे. सबसे आगे कर दो उसको. ठीक है. और पीछे से आप भाग रहे हैं, सामने आपका बंदा आगे भागा नहीं है, उसको ठुटा पड़ेगा, वो गिरेगा. ठीक है, अपने आप भागेगा. बट वी सी द सिंक्रोनाइजेशन इन एवरी मूव जो एनडीए में होते हैं जब पास आउट होता है. करेक्ट. बट ये कोई तो होता होगा सर, लेफ्ट का राइट करता होगा, राइट का लेफ्ट करता होगा. इन द फर्स्ट फ्यू डेज यस. अच्छा. उसके बाद नहीं. ओके. बट सर मैंने सुना है टो का जो शेप होता है, ठीक है, आई थिंक वो वी शेप होता है और परफेक्ट वी रखना होता है उसको. सो डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ दैट नॉट कीपिंग? भाई मुझे याद है पहले टर्म में जो ड्रिल उस्ताद था, ही वुड कम, ही हैड अ ट्रायंगल. ठीक है. और आपके टो के बीच में डालता था वो ट्रायंगल. अगर वो ट्रायंगल बिल्कुल सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एडजस्ट कराएगा, बोलेगा और खोलो और कम करो, व्हाटएवर. ठीक है.
and you practiced. Okay. In a while, everything falls in place. Falls in place. अच्छा सर, मैंने सुना है कि when we are at a home, एनडीए की डॉक्यूमेंट्रीज में इन जगह देखा है हमने, you the home is very sweet, जो अपना घर होता है, ठीक है, but when you reach India you will first time feel get कि कोई चला रहा है हम पर और पूरे टाइम पे चला रहा है. So how is that movement, मतलब ये हो क्या रहा था वहां पर तब? वो लगता था अभी कुछ ज्यादा ही प्रेशर नहीं है कुछ. But again, I'll go back to the same thing which I said earlier. हाँ. How do you prepare a person for war? You put physical pressure on him. Okay. You put mental pressure on him. Chillara is a mental pressure. Okay. If you can handle physical and mental pressure in a synthetic, ये सब तो synthetic है. भाई अगर आपने नहीं किया पनिशमेंट ही तो मिलेगा, जिंदगी थोड़ी जाएगी आपकी. लेकिन वॉर में अगर आपने नहीं किया तो जिंदगी जाएगी. जिंदगी जाएगी, ये बात तो ट्रू है सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. बट मैंने सुना है एनडीए वालों के लिए जो जिंदगी होती है वहां पर उस टाइम वो कोल्ड कॉफी होती है एंड डेक्कन जिमखाना में उतरना हर संडे. दैट्स अ बिग लग्जरी. That's a big luxury. But cold coffee first timers को more often than not नहीं भी मिलती है. अच्छा. So yes, that is all. There's a matter of privileges. As you get higher in this thing service or seniority आपकी बढ़ती है, your privileges increase. Okay. The objective here is not to make you feel small. The objective here is to make you realize for everything that you get, you have to give something. भाई अगर आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो आपने उसके लिए कुछ ना कुछ तो बलिदान दिया है. Right? That is why this concept of privilege is there. It is not anything else. Okay. Let's not take the wrong ideas from here. Let's take the idea which is that simple सी चीज है. आपको अगर आपको बाहर जाना है छुट्टी पे, शॉर्ट लीव, भाई सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आपने बाहर जाना है, उसके लिए आपने ड्रिल स्क्वायर टेस्ट पास करना है जी. अगर आपने ड्रिल स्क्वायर टेस्ट नहीं पास किया तो यू कैन नॉट गो shore leave. So there is a carrot and there is a stick. Okay. Right? You know you want this, you have to work for it. It teaches you right from beginning, for everything there is a sacrifice. Okay. For everything there is an effort. Things don't come for free. अब ये वो आप भूल जाएं कि आपके माँ बाप क्या थे, कैसे थे, कितना पैसा था, कितना पैसा नहीं था, आप अपनी क्या कर सकते थे अपने उसमें. That's all different. यहाँ पे तो you are all the same. There is no special privilege for person X versus person Y because of his background, because of his name, because of his caste, because of his creed, because of whatever. Everybody is exactly the same. And you have to fight within all of that to make your position, your place. That is where your character comes out. Okay, that's great sir. But यहाँ पर जरा मैं थोड़ा fun part पे वापस लेकर आना चाहूँगा. So right now in NDA, my friends were there when we were in the college. So I was in Pune, Bharat Vidyapeeth. ठीक है. So they come to know that Varshan is also here. So he will bring out everything they want. ठीक है. And we have some खुफिया रास्ता, वो मैं आप शेयर नहीं कर सकता. That NDA people मैं भी जानता हूँ, चिंता मत करो. Okay. जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो स्कूल के तो हम प्रिंसिपल हैं. जी बिल्कुल मैं मानता हूँ इस मामले में. So my friends used to call me by using mobile. और मोबाइल एनडीए में अलाउड नहीं होता था. तो सर आपके टाइम में तो कुछ ऐसा था नहीं कि मोबाइल तो व्हाट्स द लग्जरी यू कीप हाइड? रेडियो ट्रांजिस्टर होता था हमारे टाइम पे. अच्छा. ठीक है. ट्रांजिस्टर जिसके हाथ में जिसके पास ट्रांजिस्टर था वो गाना सुन सकता था रात को. जी. व्हाट अ प्लेजर. ठीक है. नेक्स्ट थिंग वाज अ टेप रिकॉर्डर. ओके. कैसेट प्लेयर. ठीक है. जिसमें आप कैसेट डालें और गाना सुने, अपनी मर्जी का गाना सुने. ओके. वाह. Right? Those are privileges. So how you hide? क्योंकि आजकल तो मोबाइल के लिए लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी रख रखी है, मोबाइल के साइज का कट आउट निकाल रखा है डिक्शनरी से, जिससे मोबाइल वहां छुपा सकें. What's you do to hide those things? Something similar. अब मैं अपने ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, क्या पता दूसरे को ना मालूम. सर आप तो निकल गए ना, जो अभी देख रहे हैं एनडीए के लिए. तो देख रहे हैं वो जाने वाले हैं ना. सबके देखो दाव पेच सब करते हैं. ये वो चोर सिपाही का गेम है. ओके.
ठीक है, चोर हमेशा एक कदम आगे रहता है। चोर हमेशा एक कदम आया, रहना भी चाहिए। चलिए, आई होप ये मिस्ट्री जो है आप वहां जाके मिल ही जाती होगी। ओके सर, दीज थिंग्स वर देयर, बट व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड सर? 4 सालों में गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी सर आपकी? इंडिया में, हाँ। इंडिया में कहाँ लड़कियां हैं? नहीं, लड़की वहां तो नहीं, बट पुणे डेक्कन जिमखाना तो जाने को मिलता ही है ना सर, और बॉल पार्टनर भी तो ढूंढना ही है। भाई हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, बॉल पार्टनर्स नहीं होते थे, इंडिया बॉल भी नहीं होती थी। अच्छा। ठीक है, सो नहीं, नॉट रियली। देयर पीपल हु हैड गर्लफ्रेंड्स, आई वोंट डिनाई दैट। ओके। देयर, उनके साथ लिबर्टी जाना वाज कंसिडर्ड, यार एक कन्या से मुलाकात होगी। हाँ। ठीक है, बट यस, पीपल डिड मेक गर्लफ्रेंड्स, आई विल नॉट डिनाई दैट, सो डिड आई विल नॉट डिनाई दैट आल्सो। ओके। ठीक है, इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल योरसेल्फ। ओके, बट सर अब तो आपको थोड़ी जेलसी होती होगी दैट द एंड टाइम, नाउ द एंड टाइम इज देयर कि गर्लफ्रेंड होती है, मतलब बॉल बॉल पार्टी होती है। नहीं, इट्स नॉट अ फीलिंग ऑफ जेलसी, इट्स एक्चुअली फीलिंग, इट्स अ नाइस फीलिंग कि ये प्रोग्रेस कर रहा है। Okay, and what about the Indian Navy? When you join Indian Navy, then what? Academy से pass out हुए तब? भाई एनडीए से जब पास आउट होते हैं या नेवल एकेडमी से पास आउट होते हैं, जी। नेवी में जब जाते हैं, हाँ। ठीक है, देन यू जॉइन द शिप्स। जी। ठीक है, व्हेन यू लैंड अप ऑन द शिप हम्म। एज अ कैडेट, यू आर बैक टू लोएस्ट फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ। हाँ। राइट, देखो इट्स द सेम इन द आर्मी। जी। जब एक ऑफिसर आईएमए से पास आउट होके उसको लगता है कि अब मुझे यहाँ पे स्टार लग गया है, अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ, ये अपने यूनिट में पहुंचता है तो पहली चीज उसको बताई जाती है कि बेटा ऑफिसर्स मेस नहीं, तुम जाओ जवान्स के मेस में रहोगे, ओके। जवान्स के साथ खाओगे, हम्म। उन्हीं का रूटीन फॉलो करोगे और अपने रैंक के बैच नहीं पहनोगे। अच्छा, यू आर रंग रूट। तो पता तो लगता ही नहीं होगा फिर किसी को? भाई यू हैव टू नाउ प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। अच्छा। भाई हाउ विल यू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द मेन? हम्म। Because you are better than them or at least as good as them, जी। right? And you spend a fair amount of time along with the jawans. ओके। Same we do in the Navy. ओके। You have to spend time doing exactly what a sailor does, Okay. from cleaning the bilges to cleaning the engines to doing engine watchkeeping to whatever. You have to do everything the way a sailor does. ओके। So that you know कि भाई उसको क्या तकलीफें होती हैं। Therefore, when you become an officer or you start commanding things, you know what it means for that guy to implement your command. But reality से तो अलग हो नहीं सकते। जी जी जी। माता धरती के ऊपर पैर होना जरूरी है। ये आपको माता धरती पे ले आता है कि भाई पैर, फौज में ये हमेशा रहा है, पहले आपको पतंग की तरह ऊपर चढ़ाएंगे, अच्छा। फिर काट के नीचे माता धरती पे पैर डालें भाई साहब आप, ओके। ताकि आप इतना ना उड़े कि आपके पैर जमीन पे ना हो। Which is why if you see Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force are the best in the world, because we are grounded, we are with our men, we command respect of our men. We Okay. don't order that respect. They Okay. respect us because they feel we are good. Okay. So how was your day when you get passing out parade from NDA? वो दिन क्या था सर, थोड़ा बताएंगे जरा? Now the last moment of the days are there, आप pass out होने वाले हैं, बताइए अब तो। Interesting thing. Okay. तो NDA से pass out होना starts, the feeling starts hitting you only in the last 2 weeks or 3 weeks. अच्छा। उससे पहले every day is the same. अच्छा। You were a six-stepper for the last 6 months, last 5 months, yes. You were God, yes. अब मैंने बताया था ना पतंग का डोर काटना. हाँ जी, हाँ जी। Some days short of your passing out, before your parents come into this thing, even before that, you start doing your passing out parade का practice. जी। So passing out cadets जो हैं इनको अब muster जब होते हैं तो अलग होते हैं, अलग जगह पे खड़े होते हैं, no longer with their squadron जिसके साथ थे, but only the passing out course starts parading together. क्योंकि अब आप एक साथ निकलोगे, ठीक है? So that practice starts. So now it starts hitting you कि हाँ यार मेरा passing out हो रही है, I am going to pass out, right? Then comes what is called as a zero tower day.
इट्स अ सोशल एकेडमी, सोशल या सोशल कहलाता है, कॉटन, इट इज ऑलवेज कॉटन वाइज। ओके, उस दिन 6 termers are no longer 6 termers, they become 0 termers, 0 termers। 0 termers, अच्छा। that is lower than even the first termer। हाँ, तो फिर अब Then they call everybody in the cotton, sir, and anybody and everybody can slap them, dhap them, give them punishments, make them do whatever. The objective here is जो हमने यहाँ किया है, right? As a part of your daily thing, you have hurt people. I will not deny that. You have done things which somebody could keep a grudge. आपको अब ये मौका है कि भाई अपने grudges निकाल ले। ओके, ठीक है। So you become a 0 termer, you get punished by everyone else. It is in good fun, nothing detrimental about it. Yes, there have been instances long back though of people taking this to extreme limits, but they are far and few, bit very very few. But generally, it is all in good taste. It is all in good humor, and people take their grudges out. Okay, so you spend one day as a 0 termer. One day as a 0 termer, that's great। ठीक है, next day you're back to being 6 termers, but 6 termers by the time at this stage the 6 termers don't do anything. ओके, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट के नाम पे अपॉइंटमेंट के टैब्स पहनते हैं, बट जो 5th termer होते हैं जी, जो अगले में 6 termer बनेंगे, जी, they are already they're wearing their 6 termer के टैब्स। ओके, जो भाई अगला क्या होगा, he starts doing the work of the appointment. 6 termers are not doing much, they have handed over, so you know कि भाई मैंने अब ये आज तक मैं ये कर रहा था, अब मैंने हैंड ओवर कर दिया है। अब एक बार मैंने हैंड ओवर कर दिया, then I don't interfere with that guy. It is his job. So you learn the art of distancing yourself from things that you should not be doing. Oh, that's great, sir. But sir, अब मैं जरा एक कहानी लेकर आना चाहूँगा। We talked a lot about NDA, but what about the SSB part? When अब जब आप शायद रिकमेंड होंगे, शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं किस वजह से रिकमेंड हुआ हूँ। Correct? But when you आज भी became नहीं होता। मैं सवाल ही पूछने वाला था, मैंने आप इंटरव्यू ऑफिसर बन गए थे तब तो पता लग गया होगा, सवाल ही पूछने वाला था अभी। हाँ, जब मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर बन गया, then yes, I knew why I got recommended. Correct. Okay. The reason is the same OLQs, same 15 OLQs. The thing is, मैं आज भी मानता हूँ, तब भी मानता था, इंटरव्यू ऑफिसर का कोर्स किया तब भी मानता था, उसके बाद भी मानता था। For a candidate, it is not necessary for him to know the OLQs. Okay. Because ये बहुत मुश्किल काम है ये कहना कि साहब मैंने ये किया, इसके मतलब ये है कि मैंने ये OLQ दिखाया, और अगर उसका ध्यान उस पे है तो करेगा क्या? हर बार वो अपने आप पे प्रेशर डाल रहा है, स्पेशली दिस कम्स आउट इन द इंटरव्यू। ओके, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। सही बात है सर। ठीक है, अगर वो सच बोलता है तो उसको लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है, राइट? 99% ऑफ द लोग क्या करते हैं? टेल मी योर 3 वीकनेसेस। सर, आई प्रोक्रेस्टिनेट, सर आई एम अ लिटिल लेजी, सर माय कम्युनिकेशन इज वेरी बैड, मुझे इंग्लिश सीखनी है। व्हाट इज इट टेलिंग मी? कि भैया तुमने कहीं से रटा हुआ है और ये आसानी से बोल सकते हो तो बोल दिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इन रियलिटी शुभम तुम्हें तो याद होगा, तुम्हारा भी इंटरव्यू मैंने एक बार दिया। जी सर। ठीक है, तुमने भी लाख कोशिश की थी अपने वीकनेसेस छिपाने की। जी। राइट, बट आई स्टिल रैटल्ड आउट अ फ्यू वीकनेसेस ऑफ योर्स व्हिच यू हैड either not known or you thought you had hidden them well. जी। Now, supposing you were an actual candidate, जी, and supposing I knew as an interviewing officer कि आप में ABCD weaknesses है, जी, ठीक है, आपने वो छिपा दी, आपने कुछ और बोल दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि सर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मेरी इंग्लिश, माय लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी बैड सर, आई नीड टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। जी। अब मुझे मालूम है, राइट थ्रू द इंटरव्यू यू स्पोकन टू मी इन गुड इंग्लिश, जी, योर कम्युनिकेशन इज फेयरली गुड, व्हाट आर यू टेलिंग मी? ये मेरी कम्युनिकेशन वीक है। What are you telling me? Effectively, you're telling me that you're an idiot. हाँ, सच बात यही है कि मैं अपने आप को यस इडियट बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से जब बेवकूफी का जवाब देते हो तो चीख के बता रहे हो कि मुझे सिलेक्ट मत करो, मुझे रेकमेंड मत करो। ओहो, ठीक है,
Therefore, the bottom line is you must be honest to yourself. जब इंटरव्यू दे रहे हो, जब एसएसबी में हो, be yourself. Coming back to what you said कि भाई आपको तो मालूम नहीं आप क्यों रिकमेंड हुए. जी. वैसे किसी को नहीं मालूम वो क्यों किस वजह से रिकमेंड हुआ, बट रिकमेंड इसीलिए होता है क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में इन द राइट प्रोपोर्शन, okay, at least meeting the minimum criteria of all the oxalate qualities are done. Only then can you get recommended in the SSB. That's awesome. That's an awesome intro. Okay, but I like to know one thing at the last. अब जो एनडीए के चैप्स देखते हो आप, what do you see a big difference? Because way back in 78 and way back now in the 21st century is now you entered in 21st century. So different lifestyle, different things. What do you find? What you added in मिशन एनडीए क्यों इतना स्पेशल है? क्या होता है कि हाँ 3.5 डेज आपके मिशन एनडीए से करने के बाद बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं? What make it so special over there? देखो, your ultimately what defines or what differentiates a civilian from an army guy. When I say army, it means all the three services. जी. ठीक है. Basically, my view is only two things. Okay. Attitude, confidence. Okay. ठीक है. Mission NDA gets your attitude correct. It helps you fashion your attitude. Okay. And it gives you the confidence. Therefore, you can do things. I'll give an example. आपने एक creature है which is called the bumblebee. ठीक है. Yes sir. Right. That guy, if you give that, एक उसका situation जो है, weight कैसे है, wing span कितना है, wing कितने size के हैं, ये सब अगर आप एक physicist को देंगे, वो कहेगा this animal can never fly. जी. लेकिन सर उसने तो अपने बम्बलबी ने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी हुई है, वो तो फ्लाई करता है. जी. It flies well. Why? Because it thinks it can. Okay. That is the difference. And that is why मिशन इंडिया वाले लोग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं. And let's put it like this, not just एनडीए में सेलेक्ट होने के लिए, there are many who may feel, there are some who feel कि नहीं देखिए हमने ये सब कर लिया, very good, but I now do not want to join the armed forces. अच्छा ऐसे भी हैं? हो जाते हैं. Okay. Never know यार. Okay. Right. There are people who do सैनिक स्कूल and RIMC and military school and they don't join the armed forces. हाँ होता है सर, अपनी चॉइस होती है, लास्ट मिनट पे चॉइस. अपनी चॉइस होती है लास्ट मिनट तक. ठीक है, but they still do better than everybody else. But obvious सर, वो तो है ही सर. Why? It's same attitude and confidence. And because they are disciplined, because they know how to manage time, how to balance things, their life skills are far better than many others. They are more successful. So Mission NDA teaches you not just to join NDA and get successful there. It teaches you to be successful in life. Okay. That's a big thing, sir. बहुत बड़ी बात आपने कह दी है. And that's a great pleasure, sir. आपने काफी टाइम दिया है. And thank you so much for sharing a lovely story of India, sir. My pleasure, Shubham. Always great talking to you. And I look forward to even more such episodes. Love to. कि अब इंडियन नेवी की कहानी सुनेंगे अब. Being जब से लेफ्टिनेंट सर बने थे तब क्या हुआ? Most certainly. Okay. Thank you, sir. जय हिंद, sir. Thank you, Shubham. जय हिंद. आई होप आपको एनडीए की कहानी बहुत पसंद आई हो, पर मैं ये एक बात बोल रहा हूँ फिर से, मिशन एनडीए का एग्जाम मिस मत करना. 30 मई को हो रहा है. फोन करके या तो रजिस्ट्रेशन करो या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट में, आपको वहां जाना है. ठीक है, तो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाओ या फोन नंबर है ये वाला, इस पे कांटेक्ट करो एंड गिव द एग्जाम ऑफ 30 मई. मिशन एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.